Yes, students. I hope you must be able to complete your homework. Question number 2. 1/7. इसकी हमने value आपको given थी. You have to find the value of 2/7, then 3/7, and then 4/7, so on like this. So question number 3, we have done 2 parts. Third part was pending. So start question number 2, third part. It is exercise 1.3. Question number 3, third part. So here 0.001 and whole bar. It is the value. We have to write it in the form of P over Q. Means rational form में लिखना है आपने, where P and Q both are integral values. तो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, let x is equal to 0.001 bar. अब यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक में we are having 3 digits. तो यहाँ पे सेम नंबर लाने के लिए हमें कुछ डिफरेंट नंबर जिसका डेसिमल पार्ट जो है रेकरिंग पार्ट सेम क्या करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 1000 से हमने इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट शुड बी द आंसर? कितना हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा. इट कैन बी रिटन एज 1000 into 0.001. एक बार लिख लिया आपने इसको और इसको फिर से दूसरी बार लिख के इस पे बार डाल दो. नो प्रॉब्लम विल बी देयर. आई थिंक यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3 इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. आपके पास 1000x कितना हो जाएगा. अब ये 001 जब हम आगे 001 निकले, ये 0 जो है वो मीनिंगलेस हो गई है, सबको पता है. 0.001 and here bar. Now you see in number 1 and in number 2 इनका जो रिपीटिंग ब्लॉक है आफ्टर डेसिमल सेम प्लेसेस पे है. कौन से प्लेसेस है? 10th 100th and 1000th. 10th 100th 1000th. Now we can easily subtract these. 1000x minus x is equal to कितनी वैल्यू आपके पास 0.001 को हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं माइनस. क्लियर? अगर आपको गलती लगती है यू कैन राइट लाइक दिस और इसमें से आपने 0.001 सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये दोनों बार सेम है, वेयर इट विल बी 0 एंड वेयर इट इज 1. क्लियर? सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 999x is equal to 1 and the value of x as 1 over 999. 199. I hope you all have done this question. सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि बार जो है वो कितने डिजिट्स पे आ रहा है. How many digits are included in the bar? तो उस नंबर से ही आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है अकॉर्डिंगली. So next question is question number 5 already given to you. 1 over 17. It was long division. After 16 decimal places उसका जो repetition start होगा. So this question you had to do yourself. Question number 17. Next is question number 4. Very important question. 0.9999. Start question number 4. I hope this question all students have written. Now question number 4. In this question 2, express 0.9999. That is 5 times
and so on like this in the form of P over Q. Where P and Q both are integral values and Q should be non-zero. तो सेम मेथड है, कैसे कन्वर्ट करना है? लेट x is equal to 0.99999 and so on like this. Now it means here repeating block contains only one digit. Repeating block में सिर्फ एक ही digit है 999 जिसकी repetition हो रही है. So we can write x as 0.9 and then bar. बाकी सारा method as it is है, as we have done. So I hope you will be able to do it. फटाफट इसको solve करिए. फटाफट solve करिए इसको. You will be surprised to see the answer. ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा आपको हैरानी होगी. यहाँ पे x की वैल्यू होगी only one digit in the repeating block. अगर one digit है तो हम दूसरी वैल्यू क्या निकालेंगे? 10x. Let it be number 1. 10x is equal to 10 into 0.9 bar. It can be written as 10 into 0.99 बार. कर सकते हैं ना ऐसे हम, क्योंकि यही नंबर रिपीट हो रहा है, हमें जितने चाहिए होल पार्ट में उसके आगे हम बार लगा सकते हैं. So after one place of decimal it will shift towards right. Value of 10x will become 9.9 bar. Now you can compare these two. Here in the decimal part, place of the repeating block का digit सिर्फ 1 है, that is 9. यहाँ पे इसका place कौन सा है? 10th है. 10th समझते हो? 1/10 है ना. जब हम डेसिमल में लिखते हैं, सपोज इट इज 0.853, तो ये तो हो गया आपके पास वंस प्लेस जो होल पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? 10th प्लेस. इसको बोलते हैं 100th प्लेस. इसको बोलते हैं 1000th प्लेस. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्लेस को अगर आप सिर्फ आपके पास 0.8 है, you will get 8 over 10. 10th. ठीक है? That is why it is 10. So here subtract the 2. 2 minus 1 implies that 10x में से डायरेक्टली आप x subtract कर सकते हो. So it will be 9x is equal to, इसमें से डायरेक्ट subtract किया 9.9 बार में से 0.9 बार आपने subtract कर दिया, तो you are left with only the number 9.0. 9.0 is same as the number 9. So value of x 9 over 9, that is 1. So you have proved that 1 is equal to 0.9999 and so on like this. ठीक है? Why this value is there? क्योंकि जब हम लिमिट के क्वेश्चन करते हैं, 0.9 is very close to 1. जब हम नंबर लाइन में डिस्कस करते हैं, ये आपके पास नंबर 0 है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नंबर है 1. स्केल देखा है ना सबने, तो स्केल के अंदर फिर 10 पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं ना, उसको फर्दर 10 कर दो, फर्दर 10 कर दो. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स हैं? इनफिनिट. 0 0 0 1 के साथ हाउ मेनी 0 वी कैन नॉट फाइंड? इनफिनिट. तो जब वो बहुत वैल्यू क्लोज, यहाँ पे 0.9 है, 0.9, जब इसको आप बार बार जूम करते जाओगे, it will be very very close to the number 1. That is why this answer is 1. क्लियर? अब इसके साथ में ही मैंने एक और क्वेश्चन आपको बोला था, कल जो हमने क्वेश्चन किया था, यू विल गिव द वैल्यू ऑफ 1/7. इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ 1/7 वाज गिवन एज 0.142857 एंड देन 1. ठीक है? ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक था. This repeating block contains 1 2 3 4 5 6 digits. क्लियर? हम इसको मल्टीप्लाई करते गए 6/7 तक आपने मल्टीप्लाई किया होगा. उसके बाद क्या होता है? when we multiply it 7 into 1/7, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए था? It should be 1. ठीक है? जब आप इसको 7 into 0.142857 इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाउ मच यू विल गेट? फटाफट जरा मल्टीप्लाई करिए.
आपके पास ये नंबर आ जाएगा 0.9999। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर बुक, आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। एंड दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 1। सो 7 into 1/7 is 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. Look at several examples of the rational number in the form of p over q, where p and q are integer with no common factor, means दोनों को प्राइम नंबर्स हैं other than 1 and having terminating decimal presentation, means जब आपने उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो डेसिमल presentation was terminating. Can you guess what property q satisfied? So you can raise how many students raise the hand, how many students know the answer. इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना, जब आप 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये वैल्यू आप इस फॉर्म में लेते हो तो आंसर आपका 0.99 आएगा, अगर इसको सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। हाँ जी, आपको ये बोला है कि अगर आपके पास एक नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p over q, ठीक है, इस फॉर्म में कोई नंबर है आपके पास, कंडीशन क्या है कि p और q दोनों का HCF जो है दैट इज 1। अगर HCF 1 है तो ये नंबर कौन से हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, co-prime numbers। ठीक है, co-prime numbers। सपोज आई हैव रिटन 10/20, तो these are not co-prime, मुझे इनको कट करके कितना लिखना पड़ेगा 1/2। ये co-prime numbers है 1 and 2। co-prime numbers के लिए कोई जरूरी नहीं है कि p and q भी प्राइम नंबर होने चाहिए। नो, p and q कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर आपके पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है p over q किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, डेसिमल खत्म हो गया, तो q जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, whenever you factorize the denominator, उसके फैक्टर्स या तो सिर्फ 2 रेज पावर में होने चाहिए, 2 into 2 into 2, या अकेले 5 में होने चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 2 भी और 5। इनके सिवाय अगर कोई और नंबर है देन इट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग। क्लियर? तो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन है, यहाँ पे n और m क्या है, होल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 एंड नेचुरल नंबर्स। अगर यहाँ पे अकेला 5 है तो m 0 हो जाएगा, अकेला 2 है तो m 0 हो जाएगा, अगर दोनों है तो m और m दोनों कौन से होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। क्लियर? तो जब भी आपने इनको कंपेयर करना है, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो दोनों को मैंने कैसे किया, डेसिमल की फॉर्म में लिख लिया और डेसिमल्स को कंपेयर करना है। क्लियर? डेसिमल्स की एक्सपेंशन ये है, यहाँ पे दोनों का होल पार्ट सेम है, देन वी विल कंपेयर द नेक्स्ट राइट पार्ट। डेसिमल पार्ट में 10th पार्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, 10th पार्ट एक में 2 है और दूसरे में 8 है, सो 8 इज ग्रेटर देन 2, इट मींस 0.81 बार इज ग्रेटर देन 0.231 बार। Now question number नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं दीज वर गिवन टू यू एज होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक सबसे पहले बेटा नोट लिखिए बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं कि जब हमारे पास थोड़ा सा कैमरे की प्रॉब्लम भी है, अब ठीक है मैम, ऐड करते हैं। जब हमारे पास दो नंबर्स हैं, इररेशनल प्लस रैशनल, 2 नंबर्स हैं, one is rational, other is irrational, then their total answer will be irrational।
एग्जाम्पल 2 √2 इज इरेशनल, ठीक है, और 2 जो है वो रैशनल है, √2 जो है इरेशनल, इरेशनल को हम कैपिटल T से लिखते हैं। अब इन दोनों का टोटल √2 is irrational. I hope it is clear to you. Similarly for subtraction 2, ठीक है, अगर हम दो नंबर्स की सबट्रैक्शन करते हैं, one is rational and other is irrational, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, you must be knowing commutative property. So rational minus irrational, answer will always be irrational. उनकी सबट्रैक्शन, जब आपके पास एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल है, देयर सबट्रैक्शन में और सॉरी दैट विल आल्सो बी इरेशनल, ठीक है। नाउ थर्ड इज डिवीजन, जब आप रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो नॉन जीरो इरेशनल नंबर से एंड वाइस वर्सा, या फिर irrational नंबर को नॉन जीरो रैशनल से डिवाइड करते हो, देन आल्सो आंसर इज irrational नंबर, ठीक है। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन आल्सो वन नंबर इज रैशनल into other is irrational, so product will also be irrational. Product will always be irrational. Number 5, इनको again interchange vice versa भी हो सकता है due to commutative property. उसके बाद है अगर दोनों ही नंबर हमारे पास irrational है, product of two irrational numbers may or may not be rational. Clear? Product of two irrational numbers irrational into irrational. अगला आंसर हमें नहीं पता, it may be rational, it may be irrational, ठीक है। We cannot say जब तक हमारे पास नंबर नहीं आता, ठीक है। may or may not be rational. For example, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस √2, ये एक नंबर है, आपको पता कि जब दो नंबर्स को ऐड कर दिया तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, दैट इज इरेशनल, सॉरी सम होगा इरेशनल, और दूसरा नंबर हमारे पास है 2 माइनस √2, क्लियर। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस √2 into 2 minus √2, a plus b into a minus b, our answer will be a square, that is 4 minus b square √2 square, so 4 minus 2, it will be 2, clear. So it is rational. और अगर हम एक नंबर को √3 ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल की सेकेंड, अगर हमारे पास एक नंबर है √3 और दूसरा नंबर है √2, तो उनकी प्रोडक्ट √6, ये क्या होगा आपके पास इरेशनल। और टू वाले केस में क्या था, 2 की वैल्यू क्या थी, इट वाज रैशनल। सो हमें डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी है, अगर हमारे पास दोनों ही नंबर इरेशनल है, क्लियर। सिमिलरली देयर एडिशन, अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, दैट इज आल्सो वी कैन नॉट से, क्लियर। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कट हो जाएंगे, क्लियर। इनको अगर ऐड करते हैं तो इट विल बी इरेशनल, सो वी कैन नॉट से। सिमिलरली फॉर डिवीजन आल्सो। सो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इसी के बेस पे है। फिर से कह रही हूँ, टू इरेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट डिवीजन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में और मे नॉट बी इरेशनल। कई बार आपको एग्जांपल्स पूछी होती हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज सम इज रैशनल, तो आपने वो सोच के बतानी है एग्जांपल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्लासिफाई करना है, given number is rational or irrational. First part, we must be knowing under root 23. Now it is the under root, square root of a prime number. It is always irrational. Reason क्या है? It is the square root of a prime number. Second part is, again it was given to you homework, jinka right hai they can match the answer. Next is second part, under root 225. You all must be knowing it is a perfect square, ठीक है। 225 इसका under root कितना होता है? 15, ठीक है। So it can be written as in the form of p over q, so it is rational. It is rational. Next is number 3. Number 3 में आपको given है 0.3796. Now you can see here no dot is there, ठीक है। तो ये नंबर यहीं पे टर्मिनेट हो गया, 6 के बाद इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज terminating decimal, therefore rational. जब भी होमवर्क करना है, you have not to match answer from back कि पीछे से बुक में से देखा और आंसर लिख दिया. You should know the reasoning. Next is fourth part. It is 7.4 78, again 478, and so on like this. Now you can say here repeating block is visible. We can say it is 7.478 bar. Clear? So it is non-terminating but repeating. Non-terminating and repeating. It is non-terminating and repeating. तो वो decimals जो non-terminating and repeating होते हैं, therefore it is rational. Therefore it is rational. Next one is fifth part. अब fifth part में अगर आप ध्यान से देखो, it is non-terminating means कहीं पे खत्म नहीं हो रहा. Number is 1.101, then 001, then 0001. You can see here series changing, repeating block में same digits नहीं है. यहाँ पे जो है 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, ठीक है. After that 4 zeros, then 1 and then rest. इसका मतलब है it is non-terminating. Clear? लेकिन block repeat same नहीं हो रहे हैं, so it is non-repeating. Non-terminating and non-repeating को बेटा non-recurring भी बोलते हैं. So therefore it is irrational. Irrational.